चलिए मैं आज है ना, I'll do that thing today and I'll call him again on today and I'll check out on him. ठीक ठीक, right sir. Hi, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, everyone. मम्मी ये दरवाजा भी नहीं शो हो रहा है. Ma'am, I have some doubts regarding the Socrates. Tell me what are the doubts? Ma'am, the first doubt is from the Socrates. Ma'am, the stage of embryo in which all the body parts can be identified is called a dash. So, ma'am, I think it should be fetus, but options में था ही नहीं. एक पे था spermatozoa, दूसरे पे zygote, तीसरे पे भी zygote और चौथे पे ovnium. Yes, ma'am. Ma'am, the answer will be Yes, fetus, but ma'am. the one of the zygote was correct. Yes. Okay. Right. तो वो अगर दो options zygote थे ना, इसका मतलब वो Ma'am, question there were also some right? questions on reproduction of fish. We haven't done it yet. Yes, we haven't done reproduction of fish, and it is also not there in the syllabus also. चलो कोई बात नहीं. So did you get to know the answers? Ma'am, the second question is the zygote divide repeatedly to give rise to an dash. हम ऑप्शंस में A था एम्ब्रायो, B भी था एम्ब्रायो, C था फीटस और D था बर्ड्स. फिर आपने क्या किया? देखो मैम होना तो मैंने तो एम्ब्रियो ही एम्ब्रायो चाहिए किया, ना. बट 2 एम्ब्रायो थे. अच्छा, तो दूसरे वाला करेक्ट था, वो वाला गलत था. Yes, ma'am. Ma'am, one was correct and second embryo और was मैम wrong. ये वाला क्वेश्चन में तो मुझे समझ ही नहीं आया. Fetal ejection reflex in human female is induced by dash. Yes, First ma'am. है any of the following, second है release of
oxytocin from pituitary gland, third है pressure exerted by amniotic fluid, और fourth है differentiate of mammillary glands. अच्छा, देखो वैसे तो क्या होता है कि आई थिंक ये हमने आपको बताया भी था कि you know when the baby is about okay then that pituitary starts releasing oxytocin hormone which leads to the contractions. ठीक है, तो अब देखो इसमें fetal ejection reflex का तो कोई जिक्र किया नहीं हुआ किसी भी ऑप्शन में, तो it should primarily be oxytocin from the pituitary gland. ठीक है, what was the correct answer? मैम आई थिंक इट शुड बी, मतलब इसमें मैम वो the correct answer was showing release of oxytocin from pituitary gland. हाँ वही ना, रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, यही होना चाहिए। देखो पर इससे पहले जो सबसे पहला स्टेप होता है ना वो फीटस से ही जनरेट होता है। तो सबसे पहले फीटस मैसेज देगा कि आई एम रेडी टू बी डिलीवर्ड, उसके बाद फिर ऑक्सीटोसिन रिलीज होना स्टार्ट होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन में होती है, सो द मदर्स पिट्यूटरी ग्लैंड मतलब मदर के ब्रेन तक ये मैसेज जाएगा, क्योंकि अब देखो फीटस कैसे मैसेज देगा, नर्व्स के थ्रू है ना, एक न्यूरल मैसेज सेंड करेगा। तो वो मैसेज जब मदर के ब्रेन के पास जाता है तो फिर मदर्स ब्रेन स्टार्ट्स रिलीजिंग ऑक्सीटोसिन हार्मोन व्हिच लीड्स टू द कंट्रैक्शंस इन द यूट्रस। Okay. And then the last question was which of the following can prevent sexually transmitted disease? And then the options Yes, are ma'am. condom, oral contraceptives, vaginal lip pills और vasectomy. तो मैम इसमें तो सारे ही हो सकते हैं। नहीं, सबसे पहला ऑप्शन क्या था? मैम कॉन्डम। हाँ देखो, oral contraceptives and this vasectomy वगैरह, these methods of contraception. Ma'am, the answer should be condom. Condom, yes, because ये जो बाकी के 3 methods हैं, these are used to prevent pregnancy. मतलब these will be used to you know prevent the fusion of the two gametes. But when you know a contraceptive such as condom is used, that is used to prevent sexually transmitted diseases. तो इसका ऑप्शन फर्स्ट वाला करेक्ट है। ठीक है, वैसेक्टमी में भी क्या होता है कि बाकी के 3 मेथड्स यही हैं कि वो प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए होते हैं, बट वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से आपको नहीं बचा सकते। ओके मैम। आज काफी देर से ज्वाइन कर रहे हैं सब बच्चे। क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें 2 ऑप्शंस सेम दिए थे। हाँ यस शाश्वत, मैम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है और पिछले वाले में भी बहुत सारे। यस मैम, वही क्वेश्चन में करें तो हमारे करना है। हाँ इस बारे में आई थिंक यू पीपल शुड टॉक टू दीपक सर, है ना, आप उन्हें बताओ कि सर उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो सेम है, तो फिर सर ठीक करवा देंगे उसे, ठीक है ना। ओके चलो आगे चलते हैं। आई होप यू पीपल न्यू अबाउट द क्लास टुडे। बहुत देर से ज्वाइन कर रहे हो सब। इट्स ऑलरेडी 5। मैम आज कोई ग्रुप में मैसेज नहीं आया था क्लास कितने बजे से है, और लास्ट टाइम 6:45 से थी। चलो कोई बात नहीं, जैसे जैसे बच्चे आते रहेंगे फिर हम उन्हें अलाउ करते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज हर्माफ्रोडाइटिज्म। हर्माफ्रोडाइटिज्म क्या होता है? बाइसेक्सुअलिटी। ओके, दैट मींस दैट हियर वी विल टॉक अबाउट द ऑर्गेनिजम्स और द एनिमल्स जिनके अंदर दोनों मेल और फीमेल के गोनाड्स होते हैं और उनके अंदर दोनों ही गमीट्स बनेंगे। ओके, सो जैसे स्नेल है दैट इज आल्सो बाइसेक्सुअल या फिर हर्माफ्रोडाइट। सिमिलरली अर्थवर्म इज आल्सो हर्माफ्रोडाइट, उसके अंदर मेल वाला भी होता है फीमेल वाला भी होता है। ठीक है, नाउ सी ऐसा नहीं है कि वो खुद से ही रिप्रोडक्शन कर लेता है। ओके, अगर ये स्नेल एक फीमेल की तरह एक्ट कर रहा है तो दिस विल गो एंड रिप्रोड्यूस विद अ मेल स्नेल। ओके, और अगर ये मेल की तरह एक्ट कर रहा है तो ये फीमेल के साथ में रिप्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर कभी इसे बाय चांस नहीं मिलता कोई भी ऑपोजिट जेंडर वाला स्नेल तो ये खुद के साथ में कर सकते हैं। सो यू कैन से कि ये एक तरह का इनका मैकेनिज्म है। अगर कभी दुनिया के अंदर स्नेल्स खत्म हो गए या फिर ये कहीं फंस गए और इनके आसपास और स्नेल्स नहीं है तो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने का तरीका है ये। ठीक है, सेम चीज अर्थवर्म्स के साथ में भी है। वो दूसरे अर्थवर्म्स के साथ में मेट करके रिप्रोड्यूस करेंगे until and unless there is a dire situation where they need to reproduce with themselves, right?
नोट डाउन करो। Ma'am, we have to write this. Yes, Harsh, you have to write this. ओके, सी हर्माफ्रोडाइटिज्म में क्या होता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये दोनों ही तरह के गेमीट्स प्रोड्यूस कर सकता है। अब देखो अगर आप मैमल्स में देखो तो जो फीमेल है दैट कैन प्रोड्यूस ओनली फीमेल गेमीट्स, दैट इज द ओवम और द एग। जो मेल है वो सिर्फ मेल गेमीट्स प्रोड्यूस कर सकता है, मतलब कि स्पर्म। लेकिन ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनकी बॉडी में दोनों ही ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, मेल गेमीट्स प्रोड्यूस करने के लिए भी और फीमेल गेमीट्स प्रोड्यूस करने के लिए भी। ठीक है, लेकिन अब देखो हम तो यही सोचेंगे ना कि अगर इसके पास दोनों ही ऑर्गन्स है तो ये खुद के ही मतलब अंदर रिप्रोडक्शन हो जाता होगा, फर्टिलाइजेशन होगी, फिर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। बट ऐसा नहीं होता, ऑर्गन्स इनके अंदर दोनों हैं। लेकिन देखो मानो कि ये एक स्नेल है, दिस इज अ स्नेल, ओके, और अगर इसके अंदर दोनों ऑर्गन्स हैं फिर भी ये या तो मेल की तरह एक्ट करेगा या फीमेल की तरह। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल ये एक मेल की तरह एक्ट कर रहा है। ओके, अब ये दूसरे स्नेल के पास गया, ये एक फीमेल की तरह एक्ट कर रहा है। अरे यार, yes सहर्ष, both male and female have that feature, okay, मतलब कि देखो इसमें हम ये नहीं बोलेंगे कि एक स्नेल मेल है या फीमेल, दैट डिपेंड्स कि वो उस टाइम किसकी तरह बिहेव कर रहा है। ओके, वन सेकंड, लेट मी जस्ट क्लोज इट एंड देन वी स्टार्ट इट। मैम बिहेव करना मतलब? हाँ जी, एक मिनट चलने दो फिर बताते हैं। अरे यार मैंने इतना सुंदर स्नेल बनाया था। ओके, सो मान लो कि अभी के लिए ये वाला जो स्नेल है इसका नाम है एग। ठीक है, ये बिहेव कर रहा है एज अ मेल। ओके, लेकिन इसके अंदर दोनों ही ऑर्गन्स हैं, फीमेल वाला भी है मेल वाला भी, बट अभी ये मेल की तरह बिहेव कर रहा है। एक और स्नेल है, बी, दिस इज एक्टिंग एज अ फीमेल। ठीक है, this is acting as a female. So इन दोनों के बीच में रिप्रोडक्शन हो जाएगा। अब क्या होगा कि once reproduction takes place, ये फीमेल है, this will
produce the offsprings. Now this A snail will go somewhere else and it will start behaving as a female now. ठीक है, अब ये एक फीमेल की तरह बिहेव करने लगेगा और हो सकता है कि ये बी जो स्नेल था ये अब एक मेल की तरह बिहेव करने लग जाए. ठीक है, लेकिन हमेशा ये किसी और स्नेल के साथ ही मेट करके रिप्रोड्यूस करेंगे. दोनों ऑर्गन्स इनके अंदर होते हैं, तो हो सकता है कि कभी अर्थ पे अगर स्नेल्स बहुत कम हो जाते हैं, मतलब ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट होने वाले हैं और अर्थ पे सिर्फ थोड़े से स्नेल्स बचे हैं. अब मान लो कि एक स्नेल अमेरिका में है और एक स्नेल अफ्रीका में है. अब ऑब्वियसली बात है ना कि ये एक दूसरे के पास तो नहीं जा सकते रिप्रोडक्शन के लिए. तब ये वाला अमेरिका वाला स्नेल खुद के साथ ही रिप्रोड्यूस करके ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करेगा ताकि इसकी पॉपुलेशन बढ़ सके. सिमिलरली अफ्रीका वाला स्नेल भी ऐसे ही करेगा. समझ आई सबको बात? नोटेड एवरीवन? आगे चले. Yes, ma'am. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटरस्पीशीज ब्रीडिंग. कि हम जब दो स्पीशीज की ब्रीडिंग करवाते हैं और उनसे एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, दिस ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड एज अ हाइब्रिड, क्योंकि ये दो स्पीशीज के मिक्सचर से बना है. तो हॉर्स और डंकी के मिक्सचर से जब हमने एक हॉर्स का गेमीट लिया और एक डंकी का गेमीट लिया और उन्हें फ्यूज करवाया तो म्यूल बनता है. इसके अंदर दोनों की ही प्रॉपर्टीज होंगी. ये हॉर्स की तरह बहुत फास्ट काम करेगा, ठीक है, और जल्दी से थकेगा नहीं, बिकॉज डंकी की जो कैपेसिटी होती है वो ज्यादा होती है. देखो क्या होता था ना, हॉर्स जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है लेकिन वो बहुत जल्दी थक जाता है और उसको खाना भी खूब सारा चाहिए. डंकी जो है वो काफी स्लो काम करता है लेकिन उसका स्टैमिना बहुत होता है, वो बहुत देर तक काम कर सकता है बिना कुछ खाए पिए. तो हमने जब इनका हाइब्रिड बनाया, हमें हाइब्रिड मिला म्यूल, विच यू नो डज नॉट गेट टायर्ड वेरी इजीली और जल्दी जल्दी से काम भी करता है. लेकिन क्या हुआ यहाँ पे देखो, अब हम किसी एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल तब बोलेंगे अगर ये म्यूल भी आगे से फर्टाइल होता, कि मतलब ये भी आगे अपनी स्पीशीज को बढ़ा सकता था रिप्रोड्यूस करके. तो फिर तो सारी टेंशन ही खत्म हो जाती ना, म्यूल्स आपस में रिप्रोड्यूस करके और म्यूल्स बनाते. बट हुआ क्या कि ये जो म्यूल होता है ये इनफर्टाइल है, स्टेराइल है. ओके, सो व्हेनेवर एन इंडिविजुअल इज इनफर्टाइल हम उन्हें स्टेराइल कहते हैं. So this mule is sterile. That means कि एक्सपेरिमेंट हुआ तो सही, एक इंडिविजुअल बना भी, लेकिन ये आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो बात यही खत्म हो जाएगी. Once this mule dies, the experiment dies with him. Okay? अब देखो दो होते हैं, म्यूल होता है और हाइनी होता है. तो ये जो म्यूल है, दिस इज द रिजल्ट ऑफ ब्रीडिंग ऑफ फीमेल हॉर्स एंड अ मेल डंकी. ठीक है, ये फीमेल हॉर्स और मेल डंकी से बनता है और हाइनी में उल्टा होता है, मेल हॉर्स होता है और फीमेल डंकी होती है. ठीक है, इस चीज को नोट डाउन कर लो. मैम, तो जो हाइनी होता है वो जल्दी थक जाता है और धीरे चलता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं म्यूल और हाइनी को, तो म्यूल इज यू कैन से यूज्ड फॉर यू नो लोडिंग पर्पसेस, लोड कैरी करने के लिए, सामान इधर उधर ढोने के लिए. हाइनी इज मोर ऑफ यू नो एन एनिमल जिसको आप राइड कर सकते हो बिकॉज इट हैज मोर रनिंग कैपेबिलिटी. ये भाग सकता है हॉर्स की तरह. Miss Harney is also infertile.
Yes, Heine is also sterile. ठीक है, अब हम word use करेंगे sterile rather than using the word infertile. Okay? मैम तो ये दोनों में थे तो ना infertile use करते? करेंगे. क्या पावनी? मैम ये दोनों रिप्रोड्यूस कभी नहीं कर सकते. ये नहीं कर सकते reproduce क्योंकि ये infertile है. ठीक है, they do not have that fertility. We have to note this. Yes, you have to note this. मैम एक मिनट. हाँ बोलो अनिकेत. मैम आई थिंक कि मैम नीचे ये जो लिखा है इसमें उल्टा लिखा है. फिर जो ऊपर वाले वो शायद से म्यूल होना चाहिए. नहीं, म्यूल सही लिखा हुआ है. म्यूल हमेशा फीमेल हॉर्स और मेल डंकी के गेमीट से बनता है और हाइनी मेल डंकी से बनता है. ओके मैम. मुझे लगा शायद अनिकेत has some नेटवर्क इशू क्योंकि पहले अनिकेत बोला था ना मैम ये, सो आई थॉट नहीं मैम नेटवर्क इशू कभी नहीं आता. हाँ मेरे एंड पे हो सकता है ना. इफ यू गाइस डोंट हैव इट आई विल हैव इट. तो फिर मुझे लगा शायद वॉइस लैग हो रही है. Ma'am, just a second, ma'am. Today will we complete the chapter? यस हर हालत में हमें आज ये चैप्टर कंप्लीट करना है. ठीक है. Miss, so if infertile means sterile, then infertility means sterility. यस Okay, Miss. Ma'am, done. ठीक है. ऐसे ही लायन और टाइगर से भी ऑफस्प्रिंग्स बनाए गए हैं इंटरस्पीशीज. लायन जब मेल होता है और फीमेल टाइगर लेते हैं तो लाइगर बनता है. जब हम मेल टाइगर लेते हैं और फीमेल लायन लेते हैं तो टाइगॉन बनता है. अगेन इनकी हाइब्रिडाइजेशन से भी जो हाइब्रिड्स बने हैं या जो ऑफस्प्रिंग्स बने हैं दे आर इनफर्टाइल एज वेल. ठीक है, वो भी स्टेराइल है. मैम ये दोनों एक दूसरे को मार नहीं देंगे. हाँ जी. व्हाट वर यू सेइंग पावनी? मैम मैंने कभी देखा नहीं मैम इन दोनों को. मैम एक दूसरे को मार ही देंगे तो साथ में आके. हाँ, वो उस केस में क्या होता है कि दे आर गिवन सर्टेन इंटॉक्सिकेंट्स. कुछ ऐसे नशे वाली इन्हें मेडिसिन दी जाती है so that the mating process can take place. Miss, लेकिन फिर वो लोग इस लायन का फॉर्म लेके उसे टाइगर में इंसर्ट कर देंगे. हाँ, ये भी कर सकते हैं. और कई बार देखो what happens is कि जब you are producing a hybrid, the scientist will always try to find out a natural method so that हमें लेबोरेटरी में कम से कम प्रोसेस करना पड़े. ठीक है ना. मैम फिगर में ये टाइगर बड़ा बेकार लग रहा है. हाँ देखो क्या होता है कि ये जो लाइगर और टाइगॉन होते हैं इनकी एक स्पेशलिटी ये है कि ये अपने दोनों पेरेंट्स से ज्यादा बड़े हो सकते हैं. मतलब जितना हैवी और बड़ा लायन होता है उससे भी ज्यादा बड़े हो जाएंगे. ठीक है. लेकिन जो हमने देखा था ना कि देखो अब क्या होता है, लायन जो है वो काफी लेजी होता है. इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग वेरी पावरफुल बट इट इज लेजी. लेकिन जो टाइगर होता है वो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है. ठीक है ना. तो कोशिश की गई कि एक ऐसे बहुत स्ट्रॉन्ग और एक्टिव सा वो बनेगा एनिमल. लेकिन क्या है कि ये भी महा लेजी निकला. हालांकि ये बड़ा था बहुत ज्यादा साइज में, अपने दोनों पेरेंट्स से भी ज्यादा बड़ा हो जाता है, लेकिन ये उनसे भी ज्यादा लेजी था. ठीक है. और फिर ये स्टेराइल भी था. तो सारा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया. मैम तो ये जो फिगर में ये लाइगर है कि टाइगर है? ये लाइगर है. इन दोनों का एक एक करके. शाश्वत जब कोई बोल रहा होता है तो 2 मिनट रुका करो. ठीक है, फिर बोला करो. हाँ पहले आप बताओ. चलो शाश्वत. मैम अच्छा ठीक है. हाँ पहले उसको बोलने दो फिर आप बताना. बोलो शाश्वत. इंटरब्रीडिंग करने का पर्पस क्या होता है? देखो whenever we are interbreeding two organisms, our purpose is कि हमें दोनों organisms के desirable traits मिल जाए. ठीक है.
चलो इसको हम प्लांट्स का एग्जांपल लेके समझते हैं. फॉर एग्जांपल आई हैव अ प्लांट, रोज प्लांट. ठीक है, ये एक प्लांट है मेरे पास, इसको मैं ए बोलती हूँ. नाउ मान लो कि ये जो रोज प्लांट है इसके ऊपर मेरे पास बहुत सारे रोजेस आते हैं, लेकिन ना उन रोजेस का साइज बहुत छोटा होता है. ठीक है, बहुत छोटे छोटे से रोजेस आते हैं. मेरे पास एक और प्लांट है. ठीक है, रुको रुको ऐसे करते हैं. जैसे इसके ऊपर बहुत सारे रोजेस आते हैं. ठीक है, लेकिन क्या होता है कि इसकी जो रूट्स हैं वो बहुत ज्यादा वीक हैं, इसका रूट सिस्टम अच्छा नहीं है. ओके, तो ये रूट्स इतने अच्छे से पानी वगैरह नहीं अब्सॉर्ब करती, न्यूट्रिएंट्स नहीं अब्सॉर्ब करती, तो जितने इसके ऊपर रोजेस वगैरह आने चाहिए उतने आ ही नहीं पाते. अब मेरे पास एक और प्लांट है. ठीक है, जिसके ऊपर रोजेस थोड़े से ही आते हैं पर बहुत अच्छे आते हैं. इसका मतलब क्या है कि इसका रूट सिस्टम बहुत अच्छा है, क्योंकि वो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब कर रहा है, बहुत सारा पानी भी अब्सॉर्ब कर रहा है, इसीलिए चाहे इस पे रोज थोड़े से आ रहे हैं लेकिन बहुत अच्छे से आ रहे हैं, बड़े बड़े. तो मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जो ये वाला प्लांट है जिसपे ऑलरेडी काफी सारे रोजेस आते हैं, उस पे बड़े रोजेस आने चाहिए, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर. क्योंकि हो सकता है मैं फ्लोरिस्ट हूँ या मुझे शौक है, तो मैं इन दोनों की क्रॉसिंग करवाऊंगी. यहाँ पे मैं इसका ये वाला पार्ट ले लूंगी, स्टेम वाला, और बी का मैं रूट वाला सिस्टम लेना चाहती हूँ. दोनों का मैं क्या करूंगी, इसमें से स्टेम लूंगी, इसमें से रूट लूंगी और दोनों को कंबाइन कर दूंगी. मीन्स ये बेसिकली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो गया. हाँ, एक तरह से वही चीज है. ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे हम इसे. थोड़े टाइम बाद क्या होगा कि ये आपस में जुड़ जाएगा और फिर इसके ऊपर बहुत सारे रोजेस आएंगे और वो भी काफी अच्छे अच्छे बड़े बड़े साइज में. मैम एक बार कटा हुआ प्लांट मैम कैसे जुड़ जाएगा? जुड़ जाता है, दे अप्लाई सम हार्मोन्स ऑन इट, सम केमिकल्स ऑन इट, तो वो जुड़ जाता है. ठीक है, अब जैसे आप देखते हो कई बार हम होता है ना, किसी प्लांट की स्टेम काट के पानी में डुबो के रखते हैं, उसमें रूट्स निकल आती हैं, तो वो कैसे आई, काट तो दिया था हमने उसको, है ना. क्योंकि प्लांट्स हैव दिस कैपेसिटी, उनके अंदर ऐसे सेल्स होते हैं जो लगातार डिवाइड करते जा रहे हैं. तो अगर आपने फ्रेश कटे हुए प्लांट को ऐसे किसी मीडियम में लगा दिया तो वो जल्दी से ग्रो हो जाएगा. ठीक है, जल्दी से लगाना होता है, ये नहीं कि मैंने काट के 15-20 दिन के लिए रख दिया और उसके बाद में लगाऊं, तब तो ऑब्वियसली वो नहीं होगा. बट अगर वो फ्रेश है, उसके सेल्स अभी भी अलाइव है, देन इट विल बी पॉसिबल. बोलो शाश्वत. मैम जैसे कि सिलेक्टिव ब्रीडिंग होती है मैम शीप्स की. हाँ, हम उस पे भी आएंगे, हम शीप वाले एग्जाम्पल पे भी आएंगे. ठीक है, क्लोनिंग का भी बताऊंगी कि क्लोन कैसे बनाया गया था डॉली द शीप में, वो भी बताऊंगी. ठीक है, बोलो शाश्वत. मीन्स जब लाइगर और टाइगर, लायन और टाइगर के इंटरब्रीडिंग से बनता है, तो आर दे बोथ डेंजरस एज लायन एंड टाइगर? डेंजरस एज इन एक दूसरे के लिए या फिर वैसे? मीन्स ह्यूमंस के लिए. हाँ बिल्कुल, डेंजरस तो है ही. डेंजरस तो देखो, जब भी उन्हें ऐसे फील होगा कि दे आर बीइंग अटैक्ड या वो खतरे में है, तो वो हमेशा अटैक करेंगे. ओके, बट आज सच क्या है कि जब तक उनको उनकी नेचुरल हैबिटेट मिली हुई है, दे आर कन्वीनियंटली प्लेइंग देयर रोल इन द फूड साइकिल, तब तक वो किसी को कुछ नहीं बोलते. ठीक है, एंड व्हेन दे गैमीट्स आर टेकन, जैसे मान लो आप उन पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उनका गैमीट चाहिए या उनका कोई भी बॉडी पार्ट आपको स्पेसिमेन चाहिए, तो उन्हें फिर पहले इंटॉक्सिकेट करते हैं, उन्हें ऐसे ट्रैंक्विलाइजर शॉट देते हैं जिससे कि उनको नींद आने लगेगी, वो बहुत ज्यादा डिजी हो जाएंगे, एंड देन वी टेक द पर्टिकुलर स्पेसिमेन और व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड फ्रॉम देम. नहीं तो अदरवाइज हमें ही पकड़ के खा जाएगा. ओके मिस. यस मैम, वो तो दोनों अनिकेत पे का लड़ेंगे मैम, हाँ लायन हाँ, और पावनी, पहले अनिकेत से पूछ लेते हैं. अनिकेत, यू आर आस्किंग समथिंग. नहीं मैम, मैं ऐसे ही जनरल जनरल नॉलेज के लिए पूछा था कि तो टाइगर कैसा दिखता है, तो मैम मैंने गूगल पे देखा, बड़ा बेकार दिखता है. अच्छा चलो ठीक है. यस पावनी, टेल मी. कि मैम यही पूछना था कि मैम ये दोनों टाइगर और लायन भी तो लड़ लेते हैं, फिर मैम ये दोनों एक साथ कैसे बैठ सकते हैं? ठीक है, तो ये देखो, टाइगर और लायन दोनों से भी बड़ा है, बहुत मतलब काफी हेल्दी है, गोल मटोल, लेकिन एट द सेम टाइम काफी ज्यादा लेजी भी है. ऐसे ही बहुत सारे करके देखे मैं, हॉर्स और डंकी, जीब्रा और डंकी, जीब्रा और हॉर्स, तो ऐसे करके ना ये जॉर्स, जोनी, जोंकी, डोंकरा, बहुत सारे बनाए. ऐसे ही हमने वेजिटेबल्स के भी बनाए थे, पटाटो और टमाटो को मिला के. ठीक है, उसका नाम था पोमैटो.
अब खुद ही इमेजिन करो, पोटैटो और टोमेटो को मिक्स किया होगा तो क्या ही मिला होगा, है ना। तो वो फेल्ड एक्सपेरिमेंट था, इट वाज नॉट एट ऑल गुड, उसे लोगों ने एक्सेप्ट भी नहीं किया था। और ये बहुत पुरानी बात है, मतलब इट वाज इन दी अर्ली 2000s जब ये एक्सपेरिमेंट पूसा में करके देखा गया था बाय साइंटिस्ट्स। देन कैमल और लामा के गैमीट्स को भी जब हम फ्यूज करते हैं तो हमें ये हाइब्रिड मिलता है, ठीक है। तो इसे हम कामा बोलते हैं। हाँ जी, ठीक है। ओके, नाउ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बारे में मैम आई हैड अ डाउट। हाँ बोलो अनिकेत। मैम लामा और अल्पाका में क्या डिफरेंस होता है मेजर? देखो लामा और अल्पाका में होता है कि मेरे ख्याल से लामा जो होते हैं वो काफी ज्यादा ना पीसफुल होते हैं, मतलब काफी शांत होते हैं नेचर वाइज। जो अल्पाका होते हैं दे आर मोर यू नो यू कैन से एक्टिव एंड मोर वॉयलेंट। अगर आप उनके पास जाओगे तो वो एकदम से उनको लगता है कि वी आर बीइंग अटैक्ड, तो वो आपके पीछे भागने लगेंगे। लामा का क्या है, वो चुपचाप खड़ा हुआ है, आप उसके पास जाओ, उसे टच करो, वो कुछ नहीं बोलेगा, काफी काम बिहेवियर होता है। Then there is a difference between their fur also. Okay, alpaca का fur is more soft, it's more fluffy, काफी ज्यादा ऐसे फूला फूला सा होता है। लामा का fur जो है वो इतना ज्यादा fluffy नहीं होता। और इनकी नेक्स में भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लामा की नेक थोड़ी छोटी सी होती है, अल्पाका की थोड़ी ज्यादा लंबी होती है। Ma'am, the size also matters. Ma'am, the size is थोड़ा also. साइज में भी साइज तो मैम बहुत कम बहुत वो छोटा डिफरेंस होता है क्योंकि बहुत सेम लगते हैं दोनों। हाँ एग्जैक्टली, थोड़ा सा फर का डिफरेंस है और बिहेवियरल पैटर्न्स में चेंज है, राइट। ओके, तो हमने Yes, ये ma'am. एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात की थी स्टार्टिंग में। तो ह्यूमंस में या मैमल्स में विच टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन डू यू सी? द इंटरनल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि द मीटिंग ऑफ द गैमीट्स इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ह्यूमंस में फीमेल बॉडी में फर्टिलाइजेशन होता है, ऐसे ऑलमोस्ट सारे मैमल्स में फीमेल बॉडी में ही फर्टिलाइजेशन होगा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो दोनों गैमीट्स हैं, दे आर नॉट फ्यूजिंग इनसाइड द बॉडी ऑफ द एनिमल, रादर दे आर बीइंग फ्यूज्ड आउटसाइड इन द एनवायरनमेंट। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है फ्रॉग्स में। तो देखो फ्रॉग्स क्या करते हैं, पॉन्ड में फीमेल जाती है, शी रिलीजेस द एग्स इन द पॉन्ड, ठीक है। फिर मेल आता है और मेल क्या करता है, वो जो एग्स वहां पॉन्ड में फ्लोट कर रहे हैं उनके ऊपर स्पर्म्स रिलीज कर देगा, तो वहां पानी में फर्टिलाइजेशन हो रहा है, किसी की बॉडी में नहीं होता। सेम थिंग हैपेंस विद द फिशेस आल्सो। फिश एग्स ले करती है एक साइड पे और मेल फिश आके उसके ऊपर स्पर्म्स रिलीज कर देगी, तो वहां फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैमल्स के अंदर मेल रिलीजेस द गैमीट्स और द स्पर्म्स इनसाइड द फीमेल बॉडी, ताकि वहां पे फर्टिलाइजेशन हो। क्लियर है ये बात? I mean, today's Socrates, there were questions about external and internal fertilization. ओके, चलो तो ये नोट कर लो जल्दी से सब लोग। मैम एक्सटर्नल एंड इंटरनल तो हमने डिस्कस कर लिया था ना? हाँ हमने बात की थी, आई थिंक हमने लिखा नहीं था। यस मैम। Miss done. I've noted. ओके ग्रेट, चलो आगे चलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ना नोट करने का है, तो पहले आप लोग नोट कर लो, राइट। उसके बाद से मैं बात करती जाऊंगी। देखो ऑलमोस्ट मैंने आपको ये सब समझा ही दिया, राइट। तो ये देखो फीमेल फिशेस लेइंग द एग्स और मेल जो है वो वेट कर रहा है कि जैसे एग्स ले होंगे उनके ऊपर स्पर्म्स को स्प्रेड कर देना, राइट।
ये देखो frogs में this kind of a thing happens, right? ये देखो, so this is a microscopic image. eggs के पास में जो sperms हैं they are floating around. Okay, now look at this question and tell me what would be the answer. इस question को note down करो, ठीक है, and give me a minute, right? उसके बाद मैं आपसे answer discuss करती हूँ. Miss, can we answer the chat box? Yes, you can answer in the chat box also. ओके, तो शाश्वत चैट बॉक्स में आंसर क्या वहां पे करो, नहीं चैट बॉक्स में आंसर करो, ठीक है? Okay, ma'am. Ma'am, so please give 2 minutes. Yes, I'm giving you time. So Avni has already answered. Very good, Avni. That's the right answer. Good. मैम मुझे एक और भेजना है. अच्छा, कोई बात नहीं बच्चे, भेज दो. आई एम रीडिंग. Hello. Okay, so everybody has answered and the answers are correct. Very good, you guys. So answer यही है basically
कि देखो जब एक्सटर्नली फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो बहुत सारे गेमीट्स विल ईदर गेट लॉस्ट और विल गेट डैमेज्ड या फिर दे विल बी ईटन अप बाय द प्रेडेटर्स. सो इन ऑर्डर टू कवर अप दैट लॉस दे प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ गेमीट्स. ठीक है, जैसे नीमो वाली मूवी में देखा होगा, शार्क आके सारे एग्स खा गए लेकिन फिर भी एक दो बच गए, है ना. तो वो जो एक एक ही बचा था, वो जो एक बचा उसमें से नीमो गॉट बॉर्न, राइट. सो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड लेइंग सो मेनी एग्स. और अगर आपको क्वेश्चन घुमा के दे दिया जाए कि बताओ ये जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन वाले एनिमल्स होते हैं इनमें इतने कम गेमीट्स क्यों प्रोड्यूस होते हैं, तो सिंपल यही आंसर रहेगा आपका कि क्योंकि यहाँ फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो रहा है एंड द फीमेल system or the female internal body is responsible for taking care of fertilization. इसीलिए वहाँ पे इतने सारे गेमीट्स प्रोड्यूस नहीं होते. ठीक है, ओके. सो आई बिलीव कि आप लोग आंसर्स लिख सकते हो, तो इस पे हम नहीं रुकते, फिर हम आगे चलते हैं. मैंगो की स्लरी, ठीक है, मैंगो स्लरी. मैंगो फ्लेवर कर्ड, थोड़ा मैंगो कम डालना चाहिए. ओके, सो दिस वी नीड नॉट राइट, ऑलरेडी कर चुके हैं. ठीक है, देन देयर आर सम फ्रॉग्स. वो क्या करते हैं कि बेसिकली ये टॉड होता है एक तरह का. ये क्या करता है, अपनी बॉडी के ऊपर इन एग्स को कैरी करता है सो दैट ये उनका ध्यान रख सके जब तक कि वो हैच नहीं करते, उनमें से टैडपोल्स नहीं निकल आते. ओके, जस्ट लाइक ह्यूमंस और मैमल्स कैरी देयर बेबी ड्यूरिंग द जेस्टेशन पीरियड, ये एक तरह का टॉड है जो अपनी बैक के ऊपर इन एग्स को कैरी करता है. ओके, फिर ये एक ट्रॉपिकल ग्लास टॉड होता है, ट्री फ्रॉग होता है, जिसके अंदर के ऑर्गन्स हमें दिखते हैं क्योंकि इसकी स्किन इतनी थिन, इतनी ट्रांसपेरेंट है दैट वी कैन सी थ्रू इट. देन दिस फिश, पिराना फिश. नहीं, पिराना नहीं है. क्या नाम है इस फिश का, मुझे कौन बताएगा? Mama forgot. याद करो बच्चों, किसी को तो याद होगा. मैम दांत तो बिल्कुल पिराना जैसे ही है क्योंकि मैम पिराना फ्लैश आप तो पिराना जैसे हैं बट ये पिराना नहीं है. अच्छा देखो, इसका नाम होता है एंगलर फिश. ठीक है, एंगलर फिश क्या करती है, Yes, ma'am. ये मेल को खा जाएगी. ठीक है, एंड वंस द मेल बॉडी गेट्स डिसॉल्व्ड इनसाइड द फीमेल्स बॉडी, ये उसके गोनाड्स को यूज करके अंदर से गेमीट्स यूज कर लेगी फॉर रिप्रोडक्शन. ओके, सो पहले क्या हुआ, जब साइंटिस्ट ने इस फिश को देखा तो उन्हें लगा कि ये जो फिश है दिस इज बाइसेक्सुअल. ठीक है, तो पहले इसको हर्माफ्रोडाइट मानते थे, राइट. लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब इसके पूरे प्रोसेस को नोटिस किया गया, ऑब्जर्व किया इसे कि ये कैसे अपनी लाइफ साइकिल स्पेंड करती है, तो देखा कि ये पहले मेल को खाती है और फिर उसके गोनाड्स को यूज करके गैमीट्स को यूटिलाइज करती है फॉर रिप्रोडक्शन. ओके, नाम याद रहेगा सबको, एंगलर फिश. मैम मेरे को पता होता है कि वो इसे खा लेगी, कि वो नहीं, ऐसे ही जान के खा लेती है. मेल को नहीं पता, देखो तभी तो पीछे से खा रही है, सामने से नहीं खा रही. आना ही चाहिए उसके सामने. ओके, वो पीछे से छुप के खा लेती है उसे. सो सी, इसके अंदर क्या है कि मेल को खाएगी और उसके गोनाड्स को यूज कर लेगी. ठीक है, मैम ये कहाँ पाई जाती है? Very deep underwater. हाँ, बहुत डीपर रीजन में होती है, इसीलिए इसके सिर पे लाइट होती है ताकि ये खुद ही देख सके, राइट. दिस इज फाउंड अंडर द ओशन. मैम जैसे कंस्ट्रक्शन कैंप में होता है. हाँ, अभी आई थिंक कुछ टाइम पहले ही, आई थिंक एट द ऑस्ट्रेलियन कोस्ट और हाँ शायद ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ये फिश मिली थी, इसकी डेड बॉडी मिली है बीच के ऊपर. सो इट इज बीइंग सेड कि अगर इतने डीप वाटर की फिश अगर सरफेस की तरफ आई, इसका मतलब है कि नीचे अंडर वाटर ओशन में कुछ गड़बड़ चल रही है. हो सकता है ना कि देखो जैसे पूरी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि ओशन बेड का भी टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, इसीलिए ये फिशेस. मैम ऐसा माना जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत ऐसे अजीब व गरीब क्रिएचर्स घूमते रहते हैं और पता भी नहीं रहता.
हाँ पता नहीं, मतलब देखो एक और चीज है, मैंने सुनी थी कोई बरमूडा ट्रायंगल एक जगह है जहाँ से कोई वापस नहीं आएगा। Yes, ma'am. यस बरमूडा Ma'am, ट्रायंगल is it true? उसका वो ग्रेविटेशनल जो होता है वो YouTube पे ज्यादा तो है वहाँ पे। हाँ यूट्यूब पे तो काफी चीजें हैं कि मतलब वहाँ पे फिशेस सॉरी शिप्स जाती है तो वो वापस नहीं आती, ऊपर से कोई प्लेन जा रहा होता है तो वो भी वापस नहीं आता। Ma'am, I नाउ don't understand. Is it true or not true? हाँ सी वही बात है कि मतलब रिसर्च इज स्टिल गोइंग ऑन। इट वाज सेड कि मे बी देयर इज अ सर्टेन ग्रेविटेशनल और अ मैग्नेटिक पुल इन दैट रीजन जो ये मेटल की चीजों को नीचे की तरफ खींच लेती है। सो आई एम नॉट रियली श्योर कि इसमें मेटल के नहीं है। हाँ जी अवनी सो अवनी वन सेकंड बरमूडा ट्रायंगल तो एग्जिस्ट करता है। हाँ वो तो करता है, दैट्स राइट। Okay, so Avni is asking that ma'am in this fish the female gamete is already present. हाँ देखो फीमेल तो वो खुद ही है ना, तो उसके खुद के पास फीमेल गैमीट्स हैं, उसे मेल गैमीट्स चाहिए तो वो क्या करती है मेल को खाती है और फिर उसके गोनाड्स को यूज कर लेती है रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, ऐसे ये ब्लैक विडो स्पाइडर होती है, ये भी मेटिंग के बाद मेल को खा जाती है। मैम वो जो फिश होती है मैम एंगलर फिश, मैम वो फीमेल ही होती है बस मैम, उसका कोई मेल स्पीशीज नहीं होती। नहीं मेल होता है ना, तभी मेल को तो खाती है वो। ओके मैम। फीमेल एंगलर फिश मेल एंगलर फिश को खा जाती है, तो मेल जो है वो साइज में छोटा होता है। यस मैम। ठीक है, देन देयर आर थ्री कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। एक होते हैं ओविपेरस, एक होते हैं विविपेरस और एक होते हैं ओवोविविपेरस। ठीक है, सो राइट डाउन ओविपेरस, विविपेरस and ovoviviparous. So see, oviparous organisms will lay eggs. ठीक है, इनके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो एग्स में से हैच होके बाहर आते हैं, तो ये ओविपेरस ऑर्गेनिजम्स एग्स ले करते हैं। क्या एग्जाम्पल होगा इसका? बर्ड्स, रेप्टाइल्स, या फिर हम बोल सकते हैं फ्रॉग्स। ठीक है, रेप्टाइल्स में एक्सेप्शन, चलो रेप्टाइल्स में लिखते हैं। ठीक है, विविपेरस जो होते हैं दे गिव बर्थ टू यंग वंस। तो इसका एग्जांपल आ जाएगा आपका मैमल्स। Yes. मैमल्स में भी प्लैटिपस इज एन एक्सेप्शन क्योंकि वो एग्स ले करता है। ठीक है, प्लैटिपस देखा है सबने? फिनियस एंड फर्ब देखा है किसी ने? फिनियस Yes, एंड फर्ब ma'am. के पास Yes, ma'am. था, है ना, पेरी द प्लैटिपस, तो वो प्लैटिपस होता है। इट इज अ मैमल लेकिन इट लेज एग्स। ओके, देन ओवोविविपेरस। व्हाट पावनी? मैम कैन यू रिपीट द नेम? प्लैटिपस। मैम इट इज एन एल्गे। नो नो, इट्स अ मैमल। पावनी आप सुनते नहीं हो, मैमल है प्लैटिपस। आपकी आवाज में बहुत कम आती है यहाँ पे। मेरी आवाज कम आती है? सभी को कम आती है क्या? मैम ऐसा तो नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, तो प्लैटिपस इज अ मैमल व्हिच लेज एग्स। ओके, ओवोविविपेरस एनिमल्स वो होते हैं जिनके अंदर एग्स डेवलप होंगे लेकिन वो एग्स उनकी बॉडी के अंदर ही मैच्योर होते हैं एंड दे गिव बर्थ टू द यंग वंस। तो यहाँ पे देख रहे हो ये एक तरह का स्नेक है व्हिच इज एन ओवोविविपेरस एनिमल। ठीक है, ये एग्स देखो, कुछ स्नेक्स एग्स नहीं करते हैं, कुछ स्नेक्स जो है उन एग्स को अपनी बॉडी में कैरी करते हैं एंड देन वो एग्स उनकी बॉडी में ही हैच होंगे एंड देन द यंग वन कम्स आउट। ओके, सो द birth is given to the young one, right? Eggs hatch. And snakes are ovoviviparous. Not all snakes, some of them. Salamanders are also oviviparous. ठीक है, यस मैम। चले आगे, सबने नोट डाउन कर लिया ये? Yes, ma'am.
ओके तो यहाँ पे थोड़ा और अच्छे से वो दे रहे, देखो शार्क्स भी होते हैं, वहाँ एग्जाम्पल में शार्क भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, एट द एग्जाम्पल ऑफ शार्क एज वेल। यहाँ देखो एक शार्क को इन्होंने जब डाइसेक्ट किया तो उसकी बॉडी के अंदर दीज एग्स वर देयर। Miss, can you please scroll up? Yes, ma'am. डन एवरीवन, चलें आगे। Okay, Yes, then ma'am. see, these are stages of metamorphosis. ठीक है, what is metamorphosis? When there is a significant change in the body of an organism when it is in the larval stage as compared to when it becomes an adult. यानी जब वो लार्वा था, लार्वा क्या होता है जब वो छोटा बेबी है, ठीक है, लार्वल स्टेज, तो उस स्टेज में उसकी बॉडी किसी और तरह की थी, द स्ट्रक्चर वाज डिफरेंट, और जब वो एडल्ट बना तो बिल्कुल ही चेंज हो गया। मतलब आप उस बेबी को देख के या उस एडल्ट को देख के नहीं बता सकते कि ये कभी ऐसा भी हुआ करता होगा, ठीक है। जैसे ह्यूमन बींग्स में क्या है, आप ह्यूमन को देख के बोल सकते हो ना कि हाँ ठीक है ये बेबी होता होगा ऐसा, क्योंकि हैंड्स भी वही है, लेग्स भी वही है, नोज, ईयर्स, आईब्रोज सब कुछ सेम है, कुछ चेंज नहीं हुआ बॉडी में। लेकिन एक फ्रॉग को देखो और टैडपोल को देखो, टेल गायब हो गई, गिल्स गायब हो गई, है ना, हैंड्स निकल आए, पहले हैंड्स नहीं थे, तो बहुत ज्यादा चेंज है। सिमिलरली कैटरपिलर को देख के कोई नहीं कह सकता कि ये बटरफ्लाई बनेगा, राइट, क्योंकि विंग्स तो है नहीं, ग्रीन कलर का ऐसे बहुत स्लाइमी सा होता है, राइट, बट जब बटरफ्लाई बनते हैं तो कितना ज्यादा चेंज हो जाते हैं, एंटेना आ जाते हैं। हमें ऐसा लगता है जैसे कैटरपिलर ने प्लास्टिक सर्जरी करा ली है। हाँ एग्जैक्टली, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। वन सेकेंड, लेट मी सी, आई थिंक नेक्स्ट स्लाइड में डेफिनेशन है, हाँ ये रही, ठीक है, तो इसे आप नोट डाउन कर लो और एग्जाम्पल लिख सकते हैं ना सब लोग अपने आप। Yes. Miss, done. डन, ओके। Okay, now let us talk about asexual reproduction. Okay, Avni is asking ma'am what is the meaning of conspicuous? Conspicuous का मतलब होता है very very small. ठीक है, asexual reproduction में क्या होता है, सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, पेरेंट और ऑफस्प्रिंग जो होते हैं वो बिल्कुल सेम होंगे, जेनेटिकली क्लोन होते हैं एक दूसरे के, और जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो एक दूसरे से भी आइडेंटिकल होते हैं। जैसे आप अपनी अगर सिबलिंग्स को देखो तो आप लोग सेम तो नहीं दिखते ना, देयर इज अ सर्टेन डिफरेंस, राइट। Yes, ma'am. लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिबलिंग्स जो हैं वो बिल्कुल सेम होंगे। वन सेकेंड अवनी, वन सेकेंड।
have a doubt. मैम बोलो बोलो वन बाय वन। शाश्वत Yes, miss. तो अगर asexual reproduction में कौन होते हैं, तो फिर जो वायरस है वो अपने वायरस भी asexual reproduction करता है, तो फिर मिस वायरस कैसे म्यूटेट कर लेता है? देखो, वायरस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज आरएनए, ओके, एंड आरएनए हैज द एबिलिटी टू म्यूटेट वेरी इजीली, राइट। हम जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर एक तो देखो देयर इज अ प्रॉपर सेल, ओके, एंड दे हैव डीएनए एज देयर जेनेटिक मटेरियल, ओके। आरएनए भी हो सकता है, लेकिन डीएनए की बात हम ज्यादा करते हैं। अब देखो, वायरस में एक तो आरएनए है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंडली, जैसे एक प्रॉपर सेल होता है ना, बाहर सेल मेम्ब्रेन है, अंदर सेल ऑर्गेनेली, साइटोप्लाज्म, वायरस में ये सब नहीं है, सिर्फ आरएनए है और उसके ऊपर एक प्रोटीन कोट है, ठीक है। सो दिस लीड्स टू अ लॉट ऑफ एक्सपोजर टू द आरएनए। आरएनए हमेशा एक्सपोज्ड है, तो वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज भी कर पाएगा। दैट इज व्हाई इट गेट्स चेंज्ड वेरी इजीली एंड इट कैन इन्फेक्ट एनी इंडिविजुअल ओवर एंड ओवर अगेन, राइट। यहाँ देखो, कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब क्या है कि कॉन्स्पिक्यूअस बेसिकली मीन्स समथिंग विच इज स्मॉल बट इट इज क्लियरली एविडेंट, कि बहुत ज्यादा क्लियरली विजिबल है। तो ये चीज ना आप लोग नोट कर लेना, बिकॉज बाद में व्हेन यू रीड दीज नोट्स यू गेट कंफ्यूज्ड बिकॉज ऑफ दीज वर्ड्स। Okay, so note down these points about asexual reproduction quickly. Ma'am, will the chapter end today? Yes, it will end today. मैम आज पूरा साइंस है? नहीं, आप लोगों की क्लास मेरे साथ तो कितने बजे स्टार्ट हुआ था? 6:30 ना, 7:45 तक क्लास है आपकी। Yes, ma'am. टेंशन मत लो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत सिंपल है, सारे प्रोसेसेस बहुत जल्दी जल्दी समझ आ जाएंगे, 2 मिनट का टाइम लगता है बस, ठीक है। तो ये तो मैम टॉपिक ये बहुत, तो समझ आ रखा है, ये आपने वो उसमें एक्सप्लेन कर रखा था। हाँ Yes, ma'am. पहले भी बहुत बार explain करा हुआ है. हाँ, बहुत अलग पिछले अलग, साल भी हुआ था हाँ रिप्रोडक्शन पिछले साल भी हुआ प्लांट। था ना, तो बहुत इजी है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहला है बाइनरी मैम फिजिक्स। लिखा नहीं था मैंने। नहीं, अच्छा मैंने अच्छा, भी- जल्दी से लिखो एंड लेट मी नो। Ma'am, I am on 4th. मैम जब स्कूल खुले रहते थे तो हमारी क्लास में रेस चलती थी कि सबसे पहले कौन पूरा लिखेगा। Yes, ma'am. सब क्लासेस में Same होती है, here. सब क्लासेस में होती है बच्चे। जब हम स्कूल में थे तो हमारे साथ भी ऐसी होती है। ओके, सो व्हाट डज द थर्ड पॉइंट मीन? ओके, थर्ड पॉइंट में लिखा है नो नीड टू मेट, दैट मीन्स दैट देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ मेटिंग। मेटिंग का मतलब होता है जब दो ऑर्गेनिजम्स will come together, come close enough to exchange gametes, okay, so that process will not take place over here. Ma'am, done. Done everyone? अब जी, हो ma'am. गया? मैम लास्ट सेंटेंस में एक वर्ड लिखा है पॉपुलेशन में बी मोर सस्पिटेबल। मैम उसका मतलब क्या होता है? ससेप्टेबल का मतलब है मोर प्रोन और एक्सपोज्ड, यानी उसको ज्यादा खतरा है इस चीज का। ओके मैम।
ओके चलो आगे चलते हैं अब। तो हम इसमें बाइनरी फिजन देखेंगे। बाइनरी फिजन का मतलब होता है व्हेन वन सेल डिवाइड्स इनटू टू डिफरेंट सेल्स, मतलब डिफरेंट एज इन होते तो वो सेम ही है लेकिन दो सेपरेट सेल्स बन गए, दैट इज बाइनरी फिजन। वो आप अमीबा में भी देखते हो, बैक्टीरिया में भी होता है। फिर फ्रैगमेंटेशन, सो फ्रैगमेंटेशन इज नॉर्मली सीन इन दीज फ्लैटवर्म्स जैसे प्लेनेरिया वगैरह है। तो अगर इनकी बॉडी कट हो जाए या डिवाइड हो जाए अलग अलग फ्रैगमेंट्स में, तो हर फ्रैगमेंट में से एक नया ऑर्गेनिज्म निकल आएगा, ठीक है। फिर वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये जो टॉपिक है ये हम प्लांट उसमें अच्छे से पढ़ेंगे, प्लांट रिप्रोडक्शन में, ठीक है। उसमें क्या है कि द प्लांट has the capability to reproduce or regenerate another plant from any vegetative part of the plant। यानी कि अगर मैं प्लांट का कोई वेजिटेटिव पार्ट ले रही हूँ, तो वेजिटेटिव पार्ट्स इंक्लूड द स्टेम, रूट्स, लीव्स, इनसे अगर एक नया प्लांट निकल के आ रहा है तो दैट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ओके, प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है? बोलो बोलो जल्दी, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। मैम ओवरी और स्टेमन। ओवरी और स्टेमन, और वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? मैम जो स्टेमन ना वो कुछ अलग अलग क्लास हैं, एक बाइसेक्सुअल और एक यूनिसेक्सुअल। बट मैं पूछ रही हूँ कि कौन सा मैम जो स्टेमन होता है वो मेल में होता है। ओहो मेरे सारे इंटेलिजेंट बच्चों, मुझे ये बताओ कि वो है कहाँ पे? फ्लावर में, ठीक है। हाँ गुड अवनी, ठीक है। क्या है part of the plant in the flower? Okay, so whenever somebody asks you what is the reproductive structure in a plant, you will say it's the flower, ठीक है। स्टेमन ओवरी पे बाद में आएंगे, ठीक है ना, वो बात की बात है। सबसे पहले आप बोलोगे फ्लावर, खत्म हो गई बात, ठीक है। सो फ्लावर के अलावा किसी और पार्ट से जब भी नया प्लांट रिप्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ओके। फिर आता है बडिंग। बडिंग में क्या होता है कि जो एनिमल है या फिर बेसिकली द ऑर्गेनिज्म व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट, उसके ऊपर छोटे छोटे बड्स निकल आते हैं, एंड ईच ऑफ दीज बड्स हैज द पोटेंशियल टू डेवलप इनटू एन इंडिविजुअल, पूरा एक एडल्ट बन सकता है। अब या तो वो बड जो होती है पेरेंट की बॉडी पे अटैच रहकर ही डेवलप होगी, मैच्योर हो जाएगी, पूरी लाइफ वही रहेगी, या फिर वो पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो जाती है पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, ओके। एंड देन लास्ट वन इज पार्थेनोजेनेसिस। सिर्फ पार्थेनोजेनेसिस के अंदर क्या होता है कि गेमीट बनता है, लेकिन उसकी फर्टिलाइजेशन नहीं होती, वो गेमीट ही पूरा का पूरा एक नए इंडिविजुअल में डेवलप हो जाएगा। तो ये प्रोसेस हनी बीज वगैरह में होता है, लिजर्ड्स में होता है, एंड सम टाइप्स ऑफ सैलमेंडर्स आल्सो, राइट? यस नियति, दैट्स राइट। एग्जांपल ऑफ बडिंग इज ईस्ट। तो हम एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला आ गया हमारा अमीबा। सो इट रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली बाय स्प्लिटिंग इनटू टू, दैट इज बाइनरी फिजन। यहाँ टू के आगे लिखोगे इनटू टू डॉटर सेल्स। जल्दी जल्दी से नोट करते जाओ ताकि ये टॉपिक जल्दी खत्म हो जाए, फिर हम क्लोनिंग पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो। By splitting into two daughter cells, ये लिखोगे, उसके बाद लिखना this is called binary fission। We have already learned this. हाँ ठीक है, सिर्फ पता है क्या है, आपको पता है नाउ देयर आर सम न्यू स्टूडेंट्स आल्सो, कुछ बच्चे हैं जिन्होंने नहीं लिखा हुआ, तो इट्स बेटर ना सब लोग लिख लेंगे, ओके। तो व्हाई इज बाइनरी फिजन नॉट कॉल्ड माइटोसिस? हम उसे माइटोसिस क्यों नहीं बोलते? क्योंकि उसमें क्रोमोसोम्स वो सब इन्वॉल्व नहीं होते। इन्वॉल्व होते हैं, तभी तो सेम बन रहा है ना, क्योंकि सेम टू सेम क्रोमोसोम्स आगे चले गए। देखो माइटोसिस जो डॉटर सेल
हाँ बोलो बोलो नियति, कंटिन्यू। मैम उसमें डॉटर सेल्स होते हैं इसलिए। नहीं, दोनों में डॉटर सेल्स होते हैं। सी, माइटोसिस इज अ प्रोसेस व्हिच इज यूज्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। ओके, दैट मीन्स कि वहां पे सिर्फ सेल प्रोलिफरेशन के लिए ये प्रोसेस होगा। सो अगर कहीं पे कोई डैमेज हो गया टिश्यू, तो उसकी जगह पे सेल्स को रिप्लेस करने के लिए माइटोसिस इज यूज्ड। लेकिन बाइनरी फिजन इज अ प्रोसेस जिसमें पूरा का पूरा इंडिविजुअली स्प्लिट हो रहा है, ठीक है। So that is the difference कि mitosis is not being used for reproduction. पूरी कोई population को control नहीं कर रहा, it is just taking place कि एक organism के अंदर किसी part को repair करना है। लेकिन यहाँ पे binary fission एक पूरा process है जिसपे एक individual की life depend करती है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, फ्रैगमेंटेशन। तो फ्रैगमेंटेशन में अगर बॉडी का कोई पार्ट कट हो जाएगा, या फिर यू कैन से अगर बॉडी डिवाइड हो जाती है, जैसे कि स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा is an algae and if it gets cut like this, ऐसे फ्रैगमेंट्स हो जाते हैं, तो हर फ्रैगमेंट एक नए algae के अंदर डेवलप हो सकता है, मतलब ठीक वो है। रीग्रो दिस इज कर सकता है ना? हाँ जी, वो रीग्रो कर सकता है। इसका एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे हम, दिस इज नॉट फ्रैगमेंटेशन, ओके। इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो, स्पाइरोगायरा का एग्जाम्पल लिख सकते हो। मैम हमने ये पिछले साल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में भी Yes, किया था। ma'am. हाँ किया था ना, चलो गुड। और लिवर फ्यूग का भी कर सकते हैं, ठीक है। लिवर फ्यूग जो होती है, दिस समथिंग लाइक दिस, अगर वो ऐसे से कट हो जाएगी, वेट ऐसे नहीं होती, ऐसे होती है, ठीक है। अगर ये ऐसे कट हो जाएगी तो हर इंडिविजुअल एक नई लिवर फ्लूक में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। ये जो स्टारफिश का एग्जांपल दिया ना, ये फ्रैगमेंटेशन नहीं होती, दिस इज रीजेनरेशन। कि अगर स्टारफिश की कोई आर्म कट हो जाए तो वो आर्म रीजेनरेट हो सकती है, फिर से आ सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस आर्म में से एक नई स्टारफिश निकल आएगी, ठीक है, वो चीज नहीं होती। ऐसे ही लिजर्ड की टेल जब कट हो जाती है तो नई टेल निकल आती है, दैट इज आल्सो रीजेनरेशन। सो इट इज अ डिफरेंट थिंग देन फ्रैगमेंटेशन, राइट। I'm noted. Ma'am, what is liver fluke? लिवर फ्लूक इज अ टाइप ऑफ फ्लैट वर्म, ठीक है। वो एक बिल्कुल फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, एंड इट आल्सो यू नो कॉजेज डिजीजेस। And it causes disease. Yes, it can cause you know severe diarrhea. बहुत ज्यादा सीवियर डायरिया भी कॉज कर सकता है लिवर फ्लूक, अगर आपकी बॉडी में चला जाए तो। एंड इट इज नॉर्मली फाउंड इन डर्टी वाटर्स और डर्टी प्लेसेस, ठीक है। देखो हाइड्रा इज आल्सो एन एग्जांपल, प्लेनेरिया का मैंने आपको अभी बताया। ओके तो यहाँ पे देखो क्या है कि जो स्प्लिटिंग है वो हो सकता है इंटेंशनल ना हो, ठीक है ना, बाय चांस भी हो सकती है कई बार, तब भी ये ऑर्गेनिज्म नए इंडिविजुअल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे रीजेनरेशन और उसका ये वो दिया हुआ था डिफरेंस, तो हम उस पे नहीं रुकेंगे, हम डिस्कस कर चुके हैं वो ऑलरेडी, राइट। बडिंग देखो, हाइड्रा के अंदर बडिंग Can you होती है। show binary? क्या, व्हाट आर यू सेइंग शाश्वत? Miss, can you show binary fission again? क्लास As का I have इंट्रोडक्शन, network issue. ठीक है। हाँ नो प्रॉब्लम, आई विल शो इट एट द एंड ऑफ द क्लास, राइट। अभी आगे चलते हैं। देखो बडिंग में व्हाट हैपेंस इज, ईस्ट भी एग्जांपल है। सो एडल्ट के ऊपर फॉर एग्जांपल दिस इज ईस्ट, ओके, इसके ऊपर ऐसे बड्स आ जाएंगी। नाउ इट डिपेंड्स कि हो सकता है ये बर्ड यहीं पे अटैच रहे, क्योंकि नॉर्मली ईस्ट में बर्ड्स ऐसे ही अटैच्ड रहती हैं और उसी के ऊपर और बर्ड्स आती जाएंगी, राइट। कई बार क्या होता है कि ऐसे ये बर्ड आई, थोड़ा सा डेवलप हुई और उसके बाद ये अलग हो गई। तो हाइड्रा के अंदर ये चीज होती है नॉर्मली कि ऐसे करके ये हाइड्रा की बॉडी है,
इसके ऊपर एक छोटी सी बड आएगी, फिर वो और ज्यादा थोड़ी सी डेवलप होगी, और जब वो थोड़ी ज्यादा डेवलप हो जाएगी तो वो अलग हो जाती है पेरेंट बॉडी से। ठीक है, सो दिस इज बडिंग। लिखा सबने जल्दी से? एग्जाम्पल लिख लो, ईस्ट, हाइड्रा, कैक्टस। I'm done. So Jayashree is asking that Hydra can reproduce through both fragmentation as well as budding. Yes. ठीक है, हाइड्रा के अंदर फ्रैगमेंटेशन भी होती है और बडिंग भी होती है, लेकिन देखो फ्रैगमेंटेशन का क्या है, that there are certain regions, ठीक है, हाइड्रा के अंदर कुछ स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं जहां से फ्रैगमेंटेशन हो सकती है। अगर उन रीजन से कट हुआ तो फिर रिप्रोड्यूस कर पाएगा, लेकिन अगर कहीं और से कट हो गया तो फिर वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि रिप्रोडक्शन वाले वो सेल्स कुछ पर्टिकुलर रीजन्स में ही है। ठीक है, तो हाइड्रा के अंदर ज्यादातर बडिंग होती है रिप्रोडक्शन के लिए रादर देन फ्रैगमेंटेशन। मैम हाँ बोलो पावनी। मैम वो जो कैक्टस उस पिक्चर में लगा हुआ था मैम, वो पर्पल कलर का था मैम, ग्रीन नहीं था। देखो कुछ कैक्टस होते हैं जिनके अंदर पिगमेंटेशन होती है, ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स इन सम ऑफ देम, जिसकी वजह से उनका कलर डिफरेंट होता है। फ्लावर्स में भी तो पिगमेंट्स होते हैं, तभी वो इतने अलग अलग कलर के होते हैं, है ना। तो ये पिगमेंट्स कई बार लीव्स के अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ओके, देन लास्ट आपका टॉपिक है कलर भी होती हाँ जी नियति। हम कुछ लीव्स कलर्ड भी होती है जो हम हाँ, जो वेरीगेटेड yellow। बोलते हैं, बिल्कुल। Yes, ma'am. ठीक है, सो पार्थेनोजेनेसिस, दिस इज आल्सो नोन एज वर्जिन बर्थ। वर्जिन बर्थ क्यों बोलते हैं? बिकॉज देयर इज नो मेटिंग रिक्वायर्ड, यहाँ पे कोई भी गेमीट्स का फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, देखो पार्थेनोजेनेसिस, वर्जिन बर्थ, और उसके बाद डेफिनेशन लिखेंगे। तो देखो हनी बीज में क्या होता है कि हनी बीज ना दो तरह के एग्स ले करके, मतलब बेसिकली वो एग्स ले करेंगी, ठीक है, बहुत सारे एग्स ले किए उन्होंने। Now male will come and fertilize some of the eggs. Now suppose these eggs have been fertilized और ये वाले unfertilized रह गए, तो जो unfertilized रहते हैं ये वाले मेल बी में डेवलप हो जाएंगे। मेल कौन होते हैं? वर्कर बीज होते हैं ना, मेल वर्कर बीज, सॉरी ड्रोन्स होते हैं मेल्स। मेल ड्रोन्स, और जो फर्टिलाइज्ड होते हैं ये फीमेल वर्कर बीज बन जाएंगे। Ma'am, what is the meaning of drones? Drones basically means the bees that collect nectar. Okay, इनका काम सिर्फ नेक्टर कलेक्ट करने का होता है, ये और कुछ नहीं करते। ओके, सो यहाँ पे देखो ये वाले जो एग्स थे इनकी तो फर्टिलाइजेशन हुई ही नहीं, है ना, फिर भी ये एक ड्रोन में बदल गए, मतलब एक इंडिविजुअल में ग्रो हो गए, और जिसमें फर्टिलाइजेशन हो गया वो फीमेल बन गए। तो यहाँ पे क्या है? दिस इज पार्थेनोजेनेसिस, क्योंकि बिना फर्टिलाइजेशन के एक ऑफस्प्रिंग डेवलप हो गया। ठीक है, इसी तरह से सैलमेंडर्स में भी होता है और कुछ लिजर्ड्स में भी पार्थेनोजेनेसिस होता है कि वो जब एग्स ले करते हैं तो उसमें से जो है वो अपने आप ही ऑफस्प्रिंग्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे देखो बिकॉज देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, दिस इज आल्सो एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। मैम ये नोट नहीं करना है। हाँ, ये नोट करना है आपको। Okay. Ma'am, this is the last topic. इसके बाद क्लोनिंग वाला टॉपिक है, फिर उसके बाद चैप्टर खत्म।
डन? Yes. Yes, ma'am. ओके चलो, अब इसके बाद आई थिंक वी हैव द टॉपिक ऑफ अच्छा ठीक है, ये तो सब वही है 20 के बारे में, राइट? सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। अब हम आते हैं टाइप प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग के ऊपर। क्लोनिंग का मतलब सब समझते हैं, व्हेन वी आर प्रोड्यूसिंग एन इंडिविजुअल ऑफ द सेम टाइप, यानी अगर मैं हूं और मैंने अपना क्लोन बनाया तो माय क्लोन वुड बी द एग्जैक्ट सेम कॉपी ऑफ मी, राइट? तो सबसे पहली क्लोनिंग जो की गई थी दैट वाज डन इन अ शीप। उसमें क्या किया कि उन्होंने एक एग सेल लिया, ठीक है, और उस सेल के अंदर से उन्होंने क्रोमोसोम निकाल दिया, ठीक है, मतलब सिर्फ सेल ले लिया, उसके अंदर का जेनेटिक मटेरियल उन्होंने हटा दिया, क्योंकि वो हेप्लॉइड होता, राइट? गैमीट तो हेप्लॉइड होता है ना, तो उन्होंने सिर्फ एग सेल लिया और उसके अंदर से क्रोमोसोम्स वगैरह सब निकाल दिए। फिर क्या किया उन्होंने, बॉडी का एक सोमैटिक सेल लिया। सोमैटिक सेल इज बॉडी का कोई भी और सेल, जैसे जो ओवरी के अंदर सेल है वो रिप्रोडक्टिव सेल है, लेकिन उसके अलावा जितने भी सेल्स हैं, लिवर के सेल, स्किन के सेल, हेयर सेल, आई सेल, जो भी दुनिया जहान के सेल है आपकी बॉडी में, वो सब सोमैटिक सेल्स हैं, ठीक है। तो उन्होंने उस शीप का सोमैटिक सेल लिया और उसके अंदर का डीएनए लेकर इस एग सेल के अंदर डाल दिया, ठीक है, और फिर उसे डेवलप होने दिया। तो इस डेवलपमेंट के बाद जो इंडिविजुअल बना वो बिल्कुल उसी शीप जैसा था जिससे हमने क्या लिया था, किस शीप के जैसा होगा, जिससे हमने ओवम लिया था या फिर जिससे हमने न्यूक्लियस लिया था? जिससे हमने न्यूक्लियस किया था। बिल्कुल, जिससे ओवम। हाँ, जिससे हमने डीएनए लिया था, ये इंडिविजुअल उसी के जैसा होगा, क्योंकि डीएनए तो सारी इंफॉर्मेशन देता है ना, ठीक है। फिर से समझाओ। मैम मेरे को दोबारा समझा दो। हाँ बताती हूँ, देखो देखो इस डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। ये वाला डायग्राम बहुत अच्छा है। देखो ये तो सबको पता है ना, अलग अलग तरह की शीप्स होती हैं। यस मैम। तो ये जो शीप थी इससे हमने अडर लिया था। अडर का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है, सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस। इस शीप को देखो, व्हाइट फेस वाली शीप है, राइट? इससे मैंने न्यूक्लियस लिया, इस शीप से मैंने एग सेल लिया था, ओके। ब्लैक फेस वाली जो शीप है इसका मैंने एग सेल लिया, एग में से मैंने न्यूक्लियस हटा दिया क्योंकि न्यूक्लियस मैंने इसका ले लिया है ना। एक सेल में दो न्यूक्लियस तो नहीं हो सकते, राइट? सो इससे मैंने न्यूक्लियस ले लिया और यहाँ से मैंने एग सेल ले लिया। नाउ व्हाई डिड आई टेक एग सेल? क्योंकि एग सेल के अंदर वो सारे फैक्टर्स प्रेजेंट हैं जिनकी वजह से एक इंडिविजुअल की आगे डेवलपमेंट होती है, ठीक है। तो इस एग सेल को लेकर मैंने उसके अंदर इस सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस डाल दिया। देखो फ्यूजन हो गया। अब आगे ये ऐसे बनेगा और आगे डेवलपमेंट होता जाएगा। तो ये कैसा दिखेगा फाइनली? ये ऐसा दिखेगा। ये दिस इज द सरोगेट मदर। सरोगेट मदर मतलब जो उसको कैरी करेगी। ये इसका बेबी नहीं है, लेकिन ये बस उसे कैरी करेगी अपनी वूम के अंदर, राइट? तो मुझे फाइनली फिर ये मिलेगा इसके जैसा, क्योंकि डीएनए किसका था? इसी का था ना। तो देखो ये उसी के जैसा है बिल्कुल, राइट? सो सबसे पहले जो ऐसी शीप बनाई गई थी क्लोन करके, उसका नाम था डॉली द शीप, ओके। उसे बनाने के भी 2 साल बाद जिन साइंटिस्ट ने उसे बनाया था, 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने उसको बनाने के 2 साल बाद फिर उसके बारे में अनाउंसमेंट की थी कि हाँ हमने क्लोन बनाया है, ये क्लोन बिल्कुल हेल्दी है। और मतलब फिर दे बिकेम वेरी फेमस ऑल्सो। लेकिन फिर क्या हुआ अनफॉर्चुनेटली कि उसके 2-3 साल बाद उस शीप की डेथ हो गई, ठीक है, बिकॉज ऑफ सिवियर ट्यूबरक्यूलोसिस। अब देखो सब लोग बोलने लग गए कि यार तुम तो कह रहे थे बहुत हेल्दी क्लोन बनाया तुमने, तो इसकी डेथ कैसे हो गई? तो बहुत सारी स्पेक्यूलेशंस है उस बात को लेके भी। नाउ सम पीपल सेड कि देखो ट्यूबरक्यूलोसिस इज अ वेरी कॉमन डिजीज इन शीप्स, ओके। शीप्स को नॉर्मली ट्यूबरक्यूलोसिस हो जाता है और काफियों की डेथ भी होती है उससे। तो सबने कहा कि देखो शीप्स में ट्यूबरक्यूलोसिस बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। फिर दूसरी बात थी कि अब देखो वो एक क्लोन थी, उस पर बहुत सारे पैसे लगे हुए थे, तो ऐसे वो उसको ओपन तो नहीं छोड़ सकते थे ना कि जाओ शेफर्ड को दे दिया, जाओ इसे ग्रेस करवा के लाओ, है ना। उसको बहुत प्रॉपर लैब में रखा जाता था। मतलब ऑलमोस्ट ऑल हर लाइफ जितने साल भी वो जिंदा रही, वो लैब्स में ही रही। सिर्फ थोड़ी देर के लिए उसको बाहर लेके जाते थे गार्डन में।
So when you know keep an animal which has a natural habitat different from what you are providing to her, अगर कोई sheep garden में रहने वाले तो आप उसको lab में कैसे रख सकते हो? उसकी वजह से भी that animal you know survives for you can say a smaller duration of time. ठीक है, उसके अलावा एक ये चीज भी बोली गई कि हो सकता है कि जिस शीप से हमने न्यूक्लियस लिया था, जिस शीप का हमने क्लोन बनाया, उस शीप की एज का ही ये क्लोन बना था. इसका मतलब अगर मैं कोई 12 इयर्स के बच्चे का क्लोन बना रही हूँ, तो जो क्लोन बनेगा वो भी तो 12 इयर्स का ही होगा ना. मतलब उसकी लाइफ में 12 इयर्स तो पहले से ही कम हो गए हैं. ये बात समझते हैं सब? Yes, ma'am. How old are you people? You people also must be 13, 14, right? Yes, ma'am. Yes, क्लोन ma'am. बनाती हूँ तो वो क्लोन भी तो 13 इयर्स का ही बनेगा ना. उसकी लाइफ में से ऑलरेडी 13 इयर्स कम हो गए, राइट? इसका मतलब ये नहीं है कि अब मैं उसका फर्स्ट बर्थडे मनाऊंगी, उसका भी 14th बर्थडे ही मनेगा नेक्स्ट टाइम, क्योंकि उसकी लाइफ के 13 इयर्स निकल चुके हैं, बिकॉज द न्यूक्लियस इज 13 इयर्स ओल्ड, राइट? तो ये भी कहा गया कि हो सकता है जो न्यूक्लियस लिया था डॉली बनाने के लिए वो भी तो ओल्ड था, तो मतलब उसने अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर ली, वो ओल्ड हो गई थी तब तक, तभी उसकी डेथ हुई है. ठीक है, तो ये था हमारा क्लोनिंग वाला टॉपिक, और इसके बाद जो रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स है वो खत्म. ओके, चलो तो फिर बंद करते हैं. जाओ सब लोग वीकेंड एंजॉय करो, मौसम भी अच्छा है बाहर. Thank you, Miss Ban. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Good night, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Is there math class today? Ma'am, is there ma'am? आई डोंट नो, आप एक बार दीपक सर से पूछो. आई थिंक होगी, अगर मेरी क्लास 7:45 तक है तो हो सकता है कि फिर इसके बाद दीपक सर ने क्लास लेनी हो. Yes, ma'am. टाइम टेबल में है.